So hello guys and welcome back to my YouTube channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 2021 with an overall score of 639 marks. Today this is the very important video because there were so many my subscribers and all the aspirants who were connected to me were constantly reminding me of making a video on how to make short notes, because in my video I have made two videos of biology which were so much loved by you all. The first one was a 360 on 316 biology that I personally scored, and in that video I talked about my short notes. I showed my short notes to you all, that how I did a rapid revision in last 1 month just because of my short notes, what is the importance of the keywords and all that, and you all love my short notes. That's why so I thought to make a video then how to make a short note. But this is the correct time where I should post or update you all about the short notes, because I just wanted NEET 2022 to get over, because मैं नहीं चाहता कि एग्जाम के 1 या 2 महीने पहले या कुछ वीक पहले आप शॉर्ट नोट्स बनाने बैठे, because that is a time when you have to actively revise so much. So I was like postponing this video, and now when approximately 10 months are left for your NEET exam, it's beneficial for you all to make short notes now. You can invest your time in short notes and you are definitely gonna ripe fruit when you will come to the last 1 month of your NEET exam. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रिपरेशन लेवल कितनी होनी चाहिए कि अब आपको करेक्ट टाइम आ गया शॉर्ट नोट बनाने का. यू शुड मास्टर योर एनसीईआरटी इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, वेदर इट इज एनी टॉपिक, वेदर इट इज एनी डायग्राम और एनी स्मॉल टू स्मॉल वर्ड. यू शुड मास्टर योर एनसीईआरटी ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीटली. इट शुड नॉट बी लाइक आपने अभी उसके लेक्चर्स देखे, 1-2 बार आपने एनसीईआरटी पढ़ी और आप बैठ गए शॉर्ट नोट्स बनाने. नहीं, वो बहुत गलत अप्रोच होगी शॉर्ट नोट्स बनाने की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वट एवर द स्टेप्स दैट आई हैव टोल्ड इन माई दिस वीडियो, दैट हाउ टू स्कोर 360, you should thoroughly follow this step to first achieve that. Then I have already made a video that how to read your NCERT. You have to watch this video and you have to read your NCERT in this particular manner, and that to 5 to 10 or how many times that much it takes for you to master the NCERT of that particular chapter. After that you need to make the short note. So that short note is all about memorizing all the lines of the NCERT. तो अगर आपको पता ही नहीं रहेगा आपको उस चैप्टर की कौन सी लाइनें और कौन से टॉपिक इजीली वॉलेटाइल हैं और कौन सी इजीली लर्न हो जाते हैं, यू कैनॉट मेक शॉर्ट नोट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी मास्टरिंग योर NCERT of that particular chapter, then only it's correct time to make the short notes of that chapter. Then the next question comes at why do we make short notes. जब NCERT करेक्टली है तो हम उसे क्यों नहीं पढ़ सकते. योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट फॉर नाउ, बट जब आपका लास्ट 1 मंथ नीट का बचेगा, देन यू विल रियलाइज दैट हाउ इन लास्ट 1 मंथ each reading of each and every line of the NCERT will take you approx 1 hour for one particular chapter, that too correctly. So अगर आपको अपना वो टाइम सेव करना है, आप शॉर्ट नोट्स बनाने का बेनिफिट क्या रहेगा कि आप लोग पूरी NCERT अगेन अच्छे से रिवाइज कर लोगे, बट इन 15 to 20 minutes. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और इंपॉर्टेंट डायग्राम. आई एम टॉकिंग अबाउट the whole NCERT you can revise in 15 to 20 minutes of one particular chapter. Due to these short notes, I personally revised my whole biology of 11th and 12th within 1 day, starting from the morning, studying till late night. That was a benefit of me scoring. That was a benefit of my short notes that led to score of 360 in NEET exam. So now I will be guiding you that how to make short notes. मैं आपको एक चैप्टर का एग्जांपल दूंगा, एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी का, और मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कैसे आपको NCERT के कंटेंट को कैसे आपको शॉर्ट नोट में पाइल अप करना, और आप फिर बहुत इजीली अपने शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल मेकिंग द शॉर्ट नोट्स इज आपको अपने NCERT के जो पैराग्राफ्स है उनको आपको कन्वर्ट करना है बुलेट पॉइंट्स में आपके शॉर्ट नोट्स में. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट पेज दैट यू कैन सी ऑफ एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन इज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स एंड देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, and they have been divided into ammonotelic, uricotelic and ureotelic. But this whole particular paragraph of the NCERT is given in completely paragraph form, camouflaging all the examples, all the important keyword that might be important for from this. But you can see now my short notes part of this particular topic, that how I have made different headings of ammonotelic, ureotelic and uricotelic, and I have just wrote the keyword about that particular thing. And you can also see that I have changed the color of my pen while writing the examples of particular ammonotelic or ureotelic or uricotelic animal. The thing that if you revise this particular paragraph, reading each and every line of the NCERT, and then you switch over yourself to revising these notes of the same topic, it will literally make your time so less, and that too much more efficient. आप इसको ज़्यादा अच्छे से याद कर पाओगे as compared to this whole paragraph. Let's come to the next page. The next page about the kidney, the description of the kidney. In the second page you can see on the and this is the NCERT page of kidney description. You can see इसमें paragraph में information और keywords तो हैं, उसके साथ साथ dimensions, weight of the kidney भी है. Now again you can see the short note of my particular describing the kidney, जिसमें मैंने again bullet points में कर लिया है. आपको bullet points ही याद रखने हैं NCERT के. It's all about the keyword that NCERT strikes on. First of all, bean shape है, reddish brown है, आप dimensions आपको याद करने हैं, weight जो लिखा है वो ध्यान रखना है आपको.
इस, बट, बिकॉज, सारे कीवर्ड्स, प्रोनाउन वो सब निकाल दो, क्योंकि ये सब हम रीड करते हैं बट अगेन ये सब इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा मेन कंटेंट दिमाग में रिटेन नहीं रह पाता। तो मेन कंटेंट को दिमाग में रिटेन करने के लिए आपको मेन कंटेंट को ही बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये कचड़ा आपको रिवाइज करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, जहाँ पे मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कैसे मैंने 2 पेज को सिर्फ 3-4 लाइन में कंडेंस करके रख दिया है। द नेक्स्ट पेज इज अबाउट द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के पार्ट्स हुए, पीसीटी हुआ, लूप ऑफ हेनले हुआ, डीसीटी हुआ। द होल सीक्वेंस इज गिवन इन द एनसीईआरटी इन दीज 2 पर्टिकुलर पेजेस। और उसके एंडिंग में उन्होंने 2 टाइप के नेफ्रॉन्स भी बताए हैं। एंड यू कैन सी इन माई शॉर्ट नोट्स दैट आई हैव कंडेंस्ड इट 2 पैराग्राफ कंप्लीटली इनटू 3 to 4 लाइन। मैंने एरो की मदद से ली है कि पहले पीसीटी आता है, फिर लूप ऑफ हेनले आता है, वो भी 2 में डिवाइडेड है, उसके बाद डीसीटी आता है, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आता है। और उन्हीं जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं उन्हीं के ऊपर मैंने उनके की वर्ड्स लिख दें जो एनसीईआरटी ने यूज किया। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी हैज यूज द वर्ड हेयर पिन शेप लूप ऑफ हेनले, तो मैंने लूप ऑफ हेनले के पास सामने हेयर पिन शेप लिख दिया है। अगर आपने इतने अच्छे से डिस्क्राइब अपने शॉर्ट नोट्स में कर लिया है तब आपको और दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं कि मैंने कौन सा एनसीईआरटी का कंटेंट मिस कर दिया। यू हैव कवर्ड योर होल एनसीईआरटी, दैट टू वेरी नाइसली। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड दैट आपको कोई भी पर्टिकुलर मैकेनिज्म या प्रोसेस जो एनसीईआरटी में है आपको पूरा वो शॉर्ट नोट्स में अच्छे से एक्सप्लेन अपने आप को नहीं करना है। मैंने ऑलरेडी कहा है कि आप शॉर्ट नोट्स तभी बना रहे हो जब आपने ऑलरेडी उस चैप्टर में मास्टर कर लिया है, आपको हर एक टॉपिक, हर एक लाइन एनसीईआरटी की ऑलरेडी समझ में आ चुकी, तभी आज आप शॉर्ट नोट्स बनाने बैठ रहे हो। सो रिमाइंडिंग दैट, फॉर एग्जांपल आपका मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेट ऑफ यूरिन वाला जो टॉपिक है, इन शॉर्ट काउंटर करंट मैकेनिज्म वाला, वो अगेन एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, बट आई एम नॉट टेलिंग कि आपको पूरा मैकेनिज्म शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन करना है। वो पर्टिकुलर मैकेनिज्म से जो भी 5, 6, 7 लाइन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की आपको सिर्फ वो लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में उस पर्टिकुलर पैराग्राफ से क्या लिखा है कि हेनलेज लूप एंड वासा रक्टा हेल्प्स इन मेकिंग द काउंटर करंट मैकेनिज्म, proximity helps to increase the osmolarity, ये सेकंड लाइन थी। तीसरी मैंने लाइन लिखी है अबाउट NaCl एंड यूरिया जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, एंड दैट्स ऑल। आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम एनसीईआरटी अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि मुझे पता था इन 3 के अलावा एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। एक्सेप्ट दैट पूरा प्रोसेस आपके दिमाग में ऑलरेडी क्लियर है। यू डोंट नीड टू रिवाइज द होल प्रोसेस इन योर शॉर्ट नोट्स। Always remember while making short notes are short notes. You need to condense your NCERT. You don't need to explain your NCERT. उसके लिए आपकी स्कूल की एग्जाम्स, आपकी फेयर नोटबुक्स ऑलरेडी बनी हुई हैं। So the next important thing is numbering the content whatever is given. For example, एक लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, रोल ऑफ द अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो उसमें लीवर के उन्होंने लिखा है कि लीवर सिक्रीट्स, कॉमा करके उन्होंने 7 चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप शॉर्ट नोट्स में डायरेक्टली, हम एनसीईआरटी डायरेक्टली पढ़े तो हमें नहीं ध्यान रहेगा कि एनसीईआरटी ने 7 चीज़ें मेंशन की हैं जो लीवर सीक्रेट करता है। बट द थिंग इज, जब आप शॉर्ट नोट बना रहे हो तो 7 चीज़ों के नाम लिखो और उनको नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6 7। इससे फ़ायदा क्या होगा, एग्जाम में अगर कभी लीवर के सिक्रेशन पे क्वेश्चन आ गया और आप ये पेज रिमाइंड कर रहे हो तो आपको मे भी पता ना चले कि ये पार्ट लीवर सीक्रेट करता था या नहीं करता था। लेकिन अगर आपको नंबर याद रहेगा तो आप एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन करके कर लोगे कि मैंने अपने नोट्स में पढ़ा था कि टोटल 7 चीज़ें लीवर सीक्रेट करता है, तो उसमें से ये हो गई, 7वां यही हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं का टोटल नंबर ऑफ कितनी चीजें जो लीवर सीक्रेट कर रहा है तो आप कंफ्यूजन होगी। इन शॉर्ट, वट एवर मेक्स यू फील रीडिंग योर एनसीईआरटी इजी, वो सारी चीज़ें आपको अपने शॉर्ट नोट्स में करनी है। जैसे मैंने लीवर वाला एग्जांपल दिया, मॉर्फोलॉजी और एनिमल किंगडम में आप इसका बेस्ट यूज़ कर सकते हो। अगर वैक्सिलरी एस्टिवेशन की 3 एग्जांपल दिए तो तीनों एग्जांपल के नाम लिख, उनके ऊपर 1 2 3 लिख दो ताकि आपको याद रहे वैक्सिलरी के 3 ही दिए हुए थे और ये तीनों यहाँ पे ऑप्शन में है, तो चौथा वाले ऑलरेडी वैक्सिलरी का एग्जाम्पल नहीं होगा, तो आप उसको इजिली टिक कर पाओगे। एनिमल किंगडम में भी हर एक फाइलम से इतने सारे एग्जाम्पल दिए, उनके नंबरिंग कर लो, आपको याद रहेगा। एग्जाम्पल्स के वक्त पेन का कलर चेंज कर लो ताकि कंटेंट जो है और कंटेंट के कॉन्ट्रास्ट में जो एग्जाम्पल है वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। एंड एज यू ऑल नो कि मैंने अपने सारे शॉर्ट नोट जो हैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नेम ऑफ माय टेलीग्राम चैनल इज मेडिको ओम। यू कैन एक्सेस टू ऑल माय नोट्स एट टू फ्री, बट मैंने वहाँ पे नोट्स इसलिए नहीं अपलोड किए कि आप लोग डायरेक्ट उसे यूज़ करें। आई हैव अपलोडेड दोज नोट्स सो दैट आप उससे एक बार देख के अच्छे से समझ के और अपने से सारे चैप्टर के नोट्स बनाएं। स्पेशली फॉर बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको लाइन और कीवर्ड्स दोनों पे ध्यान देने हैं। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल एज फॉर योर फिजिक्स यू नीड टू मेक द फॉर्मूला शीट्स। सो आई होप थ्रू माई दिस स्मॉल वीडियो आपको पता चल गया कि हाउ टू मेक अ शॉर्ट नोट्स, एंड सो इट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू मेक शॉर्ट नोट्स। रिमेंबर दैट मेक शॉर्ट नोट्स ओनली व्हेन यू आर मास्टरिंग दैट पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम योर एनसीईआरटी, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा आपको शॉर्ट नोट्स में कौन सी चीज़ों को ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, कौन सी चीज़ों को और क्रिएटिविटी से लिखना है, क्योंकि आपको अपनी हाइज और लोज ही नहीं पता पर्टिकुलर एनसीईआरटी। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।